Hi guys, hope you are doing well. It's been quite a couple of days since the last lecture. I was occupied in certain other things, so couldn't continue regularly. But anyways, going forward, it will be very quite regular. I can assure you that. So today, moving ahead in subsequent in sequence to the previous lectures, जो हमने पहले दो lectures किए थे on percentages, the basics of percentages. So उसी को ही आगे we'll try to extend that concept and we'll try to cover some questions also. And दो तीन चीजें important हैं जो कि which are very fundamental, but they will help you in the coming chapters also. ठीक है? So let's begin. चलिए. So last time as we discussed कि if I say कि A is 40% more than B. So this we understood in the last lecture. So if you have missed that lecture, please go through that because that's very critical, important. ये फंडामेंटल्स इस चीज को समझने के लिए हमें यू हैव टू गो बैक, अदरवाइज ये अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे जाने का कोई फायदा नहीं. So please, if you have not watched that lecture and previous two lectures, I would say please go watch them first and then come to this lecture. Now, जस्ट रिकैपिंग. तो ए इज 40% मोर देन बी. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी. बी बी से ज्यादा है, बी से तो बड़ा ही है क्योंकि लिखा ही है, क्योंकि मोर लिखा है तो इट मीन्स की मोर ज्यादा ही होगा. बी प्लस 40% ऑफ बी. दिस मीन्स कितना ज्यादा है, ए बी से कितना ज्यादा है. दिस इज द अमाउंट बाय विच ए इज मोर देन बी, because I can write this as a minus b is equals to 40% of b. So this is what amount by which A is more than B. ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. हमने इसका ग्राफिकल इसका डायग्राम के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश की थी. वो कैसे कि अगर ये दिस इज B, then A would be something like this. A will completely cover B and it also have extra. And what is this extra? This is equal to 40% ऑफ B. मतलब इसका 40% के बराबर, रफली इतना ले. दिस इज 40% ऑफ B, तो वो उतना ही उससे ज्यादा है. ठीक है. चलिए. नाउ आई ड्रॉ टेबल. ट्राई इट इज अ रैंडम टेबल, बट ये जो ऊपर के कॉन्सेप्ट है इनको यूज किया हुआ है इसमें. एंड लेट मी जस्ट वेट, होल्ड ऑन सेकेंड. मोर देन बी इज. ठीक है. ठीक है. नाउ वी हैव डिस्कस्ड द रिक्वायर्ड things for to solve that table. So I'll draw it and let's try to solve it. आप लोग क्या, you can what you can do is keep pause the video, look at the table, draw it on your notebook and try to solve the questions in it. Okay. So this is A. Let's see.
ओके फाइन। नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टेबल। सो यहाँ पे आपको कुछ ए की वैल्यूज हैं दे रखी हैं, कुछ बी की वैल्यूज दे रखी हैं, एंड ये बाकी चीजें आपको फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो को मैं टेक द एग्जाम्पल, A's value is 100, B's value is 120। आपको बताना है A एज ए परसेंट ऑफ B कितना होगा, यहाँ पे फिल करेंगे उसका। वैसे B एज ए परसेंट ऑफ A यहाँ पे, these two कॉलम्स, इसको थोड़ा, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझा देता हूँ मैं। A इज मोर स्लैश लेस देन B इन परसेंटेज टर्म्स। तो मतलब आप इन दोनों में आपको दो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, आप क्या देखेंगे, आप इसमें से कौन सा बड़ा है, B बड़ा है या A? जाहिर सी बात है B बड़ा है, B इज मोर, 120। So by how much percentage is B more than A? So that percentage you have to write here. And इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे in this particular case I have written plus. So this plus means कि it is to signify that A is more. Because यहाँ पे ऑप्शन में मैंने ऊपर जो हेडिंग में लिखा है more or less. So to tell you that कि A is more, so I have put a plus sign over here. So A, this means this statement means A is 25% more than B. This means. Similarly, here it says B is more or less than A bracket में percentage. This minus sign over before 40% means B is 40% less than A. ठीक है, अच्छा, तो this is, I hope this these two columns are clear. Now coming to the second row, इसमें आपको B का वैल्यू दे रखा है 500 एंड A एज अ परसेंट ऑफ B आपको दे रखा है 40%। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, जो रिमेनिंग बॉक्सेस हैं, ये एंड ए का वैल्यू, ये आपको फिल करना है, पॉपुलेट करना है। ठीक है, तो टेक सम टाइम एंड ट्राई टू पॉपुलेट द सेम। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन, देन चेक फॉर द सॉल्यूशंस। ठीक है, आई विल जस्ट गो अहेड विद द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रो को ही फिल करते हैं। व्हाट डज द फर्स्ट रो से? A's value is 100, B's value is 120. A as a percent of B. So A as percent of B means A by B into 100. So we have discussed this before in the previous lecture. So you can find it out the concepts, the understanding of these concepts in the previous lecture. So you can write this as 100 by 120 into 100. So this will come out to be 25 is 26. This will come out to be 83.33%. Okay. Now B as a percent of A, again, this is 120 by 100 into 100. So 120%. Now here I would like to pause here for a minute for some time. So lot of students get confused कि 120% सर 100 से ज्यादा परसेंट कैसे हो सकता है? तो हो सकता है, परसेंटेज इज व्हाट, इट्स जस्ट अ रेशियो। ठीक है, रेशियो तो हो ही सकता है, किसी का रेशियो 1.2 और आप 100 के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो मल्टीप्लाई करें 100 से तो 120 हो गया। ठीक है, तो ये हो सकता है, और इससे ही बाकी की चीज भी आप निकाल सकते हैं। ये कैसे? वो भी समझिए, जैसे ए इज मोर लेस देन बी इन परसेंटेज टर्म। तो एक तरीका तो हो गया ए इज मोर लेस, तो कितने ज्यादा है कितना कम है उसका कंपैरिजन हो रहा है किससे, देन बी। तो बेस में तो डिनोमिनेटर में तो बी आ जाएगा, और न्यूमरेटर में आ जाएगा कि जो डिफरेंस है ए माइनस बी, व्हाट दैट इज वन वे। इसका एक शॉर्टर तरीका भी है, ए माइनस बी बाई बी इंटू 100। तो आई एम जस्ट पुटिंग इट दिस मॉड्यूलस साइन। तो अगर ज्यादा होगा तो आप प्लस पे रहने देंगे इसको, जो आंसर है, और कम होगा तो आप माइनस पे साइन साइन लगा देंगे। ठीक है, तो इन दिस केस इट्स डेफिनेटली लेस इज लेस, तो वट एवर द आंसर विल कम इट विल बी माइनस साइन के साथ आएगा। so the difference is what, 20 upon b का ट्वेल्व क्या, 120 into 100। so this will come out to be 16.67। तो माइनस साइन इसलिए लगा रहा क्योंकि a is less। ठीक है, तो ये इससे लगा, ये मॉड का मतलब ये है कि इनका जो डिफरेंस की वैल्यू है आप वो ले रहे हैं, और प्लस माइनस आप अपने हिसाब से जो ज्यादा है कम है उस हिसाब से लगा लेंगे। वही हमने यहाँ भी किया है, यहाँ मेरे को पता है क्लियरली कि ए इज मोर, ए इज सॉरी लेस, बी इज मोर। ओके, सॉरी, एंड बी इज मोर लेस देन ए। अब ये भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पे इस केस में बी की जगह ए आ जाएगा। तो द आंसर विल बी 20%। आप निकाल के चेक कीजिएगा, 20/100 इंटू 100, 20%। इसको और थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए
इस पे ध्यान दीजिए, बी एज अ परसेंट ऑफ ए 120% है। यहाँ पे कंपैरिजन क्या हो रहा है कि बी माइनस ए का कंपैरिजन हो रहा है ए से। तो जब हम देखें बी माइनस ए का जो ये है, अगर जो डायग्राम को आप फिर से फोकस में लेके आए या दिमाग दिमाग में लेके आए, ये वाला जो डायग्राम मैंने बताया था, हियर व्हेन आई से कि ए इज 40% मोर देन बी, so A is, I can also say A is 140% of A of B, ठीक है। 100% तो यहीं पे हो गया B का, दिस इज 40% ऑफ B, टोटल हो गया 140% ऑफ B। तो अगर आप देखो तो कितना ज्यादा है, देखो ये A को B को पूरा कवर कर लेता है और उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता है। तो इसका आप सीधा आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100 सॉरी 140 माइनस 100 विच इज 40%, और वही हमारा यहाँ पे भी है, क्वेश्चन में भी दे देता है, ठीक है। तो अब अपने केस में यहाँ पे आप कर सकते हैं, बी इज 20% मोर, क्यों? क्योंकि बी इज 120% ऑफ ए, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ए इज लेस देन बी, कितना ए कितना बी का था, 83.33%। तो मतलब ए बी को 83.33% ही कवर कर पाया, आई ड्रॉ इट हियर, इफ दिस इज बी, तो ए कैन ओनली कवर 83% ऑफ बी, यहाँ तक, दिस पोर्शन इज लेफ्ट आउट, this is the shortage by which A is lagging. A is short of this amount. So I can say कि A is less than B by this amount. And this comes out to be 16.66% of B. Because this 83% of B is being covered. 83.33% is covered. यहाँ पे आ गया A as a percent of B. ठीक है, ये हो गया। तो इसका भी आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 100 माइनस 83.33%, दिस गिव्स यू दिस, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं। B is 500, A is 40% of B. तो you need to find out the value of B, the value of A. तो आप इसको देखिए, हाउ कैन यू, इसको आप यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं, A as percent of B is 40%, तो A by B into 100 is equals to 40। यहाँ पे 40% है ये, तो ये ऐसा मत करना कि 40/100 कर रहे हो, नॉट रिक्वायर्ड, ये 40% को आप 40 ही लिखिए, ठीक है। अब B की वैल्यू पुट कीजिए, A by 500 into 100 equals to 40. So this gives you A equals to 200. So A आ गया आपका 200, ठीक है। अब अगला देखिए आगे, B एज परसेंट ऑफ A। तो B एज परसेंट ऑफ A ये सेम पहले जैसा ही, 500 by 200 into 100, so this will come out to be 250%। A is more or less than B, क्या आप देख के बता सकते हैं ए इज लेस देन बी, कितना लेस? देखिए ए ने बी को 40% कवर कर लिया है, बचा कितना, 60%, तो लेस कितना हो जाएगा, 60%। मैं माइनस साइन लगा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि माइनस ये लेस है, ठीक है। बी इज मोर लेस देन ए। अब देखिए बी का क्या, बी इज 250% ऑफ ए, 100% तो ए को कवर कर ही लेता है, बट उसके साथ में एक्स्ट्रा 150% भी कवर कर रहा है। बेसिकली 250% मतलब कि बी ए को 2 बार और 50% कवर कर लेता है, एक पूरा ऐसे करता है, वापिस आता है, 50% ऑफ ए को कवर करता है फिर उसके बाद। तो कितना ज्यादा है, तो आप 100 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो यू गेट 150%। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप ऐसे भी, जो हमने यहाँ पे किया है वही मेथोडोलॉजी आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। दिस नो हार्म इन दैट, इट्स जस्ट दैट कि इट इज डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग, दिस इज अनदर डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग, ठीक है।
एंड सेकंड थर्ड केस में देखा है आपको बी की वैल्यू 600 है, और ये दे रखा है आपको बी एज अ परसेंट ऑफ ए इज 30%। तो बी एज परसेंट ऑफ ए का मतलब बी ए 30% दे रखा है, इसका मतलब कि बी ए को सिर्फ 30% कवर कर पाता है, तो 70% छूट जाता है, नहीं कर पाता। ये वाला तो आप यहाँ पे दे ही सकते हैं आंसर इसका, -70%। और अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो निकालिए, क्या करेंगे। मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, आई जस्ट सेपरेट दिस। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मेरे को बार बार ऊपर नीचे स्विच नहीं करना पड़ेगा, फिर स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए। सो ए बाय 600 इंटू 100 इज इक्वल टू 30। ए एज परसेंट ऑफ बी दे रखा है, वो 30% दे रखा है। अब आप देखिए, ए की वैल्यू आ गई। ओ सॉरी सॉरी, बी एज परसेंट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। ये उल्टा पढ़ लिया मैंने, उल्टा समझ लिया। बी एज परसेंट ऑफ ए दे रखा है आपको, तो बी बाई ए इंटू 100 इज गिवन एज 60%। और बी की आपको वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू है 600, और ये 30% दे रखा है, 60% में नहीं। आई एम सो सॉरी, कोई बात नहीं। बी इज 600 बाई ए इंटू 100 इज इक्वल टू 30। So I can take this A over here, 30 इधर आ जाए, 30 can come here. So A becomes 600 into 100 by 30। A की वैल्यू आ गई 2000। ठीक है, तो आपको देखना है कि A एज ए परसेंट ऑफ B। वेरी सिंपल। तो A एज परसेंट ऑफ B आपको निकालना है, तो यू कैन राइट, सॉरी, 2000 बाई 36,000, 600 into 100। So this comes out to be 2 3 2,000। So this will be 333.33%, 333.33%। ठीक है। अब इसके बाद जो बचा है आपका, ए इज मोर स्लैश लेस देन बी इन परसेंटेज टर्म्स। आप इसमें से 100 से ट्रैक कर दीजिए, यू विल गेट 233.33%। थर्ड रो भी डन। अब देखिए फोर्थ, देखिए फोर्थ में आपको ए की वैल्यू दे रखी है, और ए एस परसेंट ऑफ बी दे रखा है 25%। तो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है बी की। जस्ट अगेन इट इज दिस पार्ट। So A as percent of B is 25, A is 400. Okay. A as percent of B, मतलब A by B into 100 is equals to 25। और आपको A की वैल्यू दे रखी है, that is 400। तो वो putting in the value 400 by B into 100 is equals to 25। B goes there, and what we get is 400 into 100 is equals to 25 into B। एंड ये इधर आ जाएगा डिवीजन में। B equals 1600।
अब देखिए, ए एज परसेंट ऑफ बी इज 25%, मतलब ए बी को सिर्फ 25% कवर कर पाता है, बाकी नहीं कर पाता। कितना छोटा पड़ गया? 75%। जिसका आंसर आ गया आपके पास में 75%। ठीक है। और आगे देखिए, बी एज परसेंट ऑफ ए, सिंपल। बी एज परसेंट ऑफ ए में क्या करें? बी बाई ए, दिस इज 400। और बी इज मोर लेस देन ए, ऑब्वियसली मोर, तो 100 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, तो आपके पास में आ जाएगा 300%। और नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट केस में किया यहाँ पे, यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो, इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखा फिफ्थ उसमें कि ए इज वैल्यू 700 एंड बी एज परसेंट ऑफ ए, बी एज परसेंट ऑफ ए 30%। तो आपको ये वैल्यू फाइंड करनी बी की, तो ठीक है। अगेन क्लियरिंग इट ऑफ। तो बी एज परसेंट ऑफ ए, तो बी बाई ए इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना परसेंट है? 30। और ए आ गया आपका 700 जो आपको दे रखा है, तो आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी बाई 700 इंटू 100 इज इक्वल टू 30। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल, और ये 7 गोज दिस साइड, तो फाइनली व्हाट यू गेट इज बी इज इक्वल टू 210, नॉट रुपीज, रुपीज की बात नहीं है। ये 210, ये 210। आपसे नेक्स्ट पूछा कि ए एज परसेंट ऑफ बी, तो सिंपल है। ए एज परसेंट ऑफ बी मतलब ए बाई बी इंटू 100, so that will come out to be A is 700, B is 210, 200, 7 3 7 10, so 333.34%, it's a huge difference। ठीक है। तो अब हमने को ये पता चल गया कि इससे सारे आंसर निकल गए बेसिकली आपके। अब देखेंगे तो दिस सेज A as percent of B, A as percent of B would be 333.34%, वो हमने अभी भी निकाला। अच्छा, फिर ए इज मोर देन स्लैश लेस देन बी, तो ऑब्वियसली मोर है। तो कितना मोर है? ये तो 333.33 टाइम्स है उसका, तो इसको आप 100 से ट्रैक कर देंगे तो यू विल गेट प्लस 233.34%। और बी इज मोर देन ए, मोर देन स्लैश लेस देन ए, तो बी इज 210। और बी कवर्स ए बाई जस्ट 30%, और 70% इज रिमेनिंग, तो -70%। ठीक। Then comes आपका A is 800 and it is given that A is more than B by 25%। तो अब इसको देखते हैं। Just hold on for a second. I'll just erase this, clear it off. Yeah, now we're ready. तो इन दिस केस अपने को A दे रखा है, ये A है 800। तो और आपको दे रखा है कि B, A is more than B by 25%। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए A माइनस बी, इसी की बात हो रही है, A माइनस बी का जो डिफरेंस है। A is greater than with is given, इस प्लस साइन से समझ में आता है। इसका तो दिस डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, बिकॉज कंपैरिजन बी से ही हो रहा है।
25, ये 25 यहाँ से आया। तो व्हाट वी गेट इज, आपको ए की वैल्यू दे रखी है 800 b माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू 1/4। दिस implies 800 minus b is equals to b/4। This implies 5b/4 equals to 800। So b is equals to, this goes into multiplication, this goes into divide. B comes out to be 800 into 4/5। तो b is 640। और बाकी के सवाल का भी आप जवाब दे सकते हैं। तो b is more than slash less than a, तो डेफिनेटली लेस, क्योंकि a इज मोर देन 25। अच्छा, a इज 25 प्लस 25, तो अगेन सिमिलरली हमने भी कैलकुलेट किया ही है। b माइनस a बाई b, तो ये आ जाएगा 160 बाई 640 इंटू 100, बेसिकली 25%। अरे इसे कैसे आ रहा है? 160 बाई, ये वाला तो निकाल ही सकते हैं हम। आपसे पूछा है यहाँ पे कि सॉरी, ये थोड़ा स्क्रॉल अप, उसमें टाइम लग, ये डिस्टर्ब हो रहा होगा, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। इसमें आपसे पूछा है कि बी इज मोर स्लैश लेस देन ए टू परसेंटेज टर्म। तो आपको बी का निकालना है, बी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है कि बी एज अ परसेंट ऑफ ए, तो कितना मोर लेस है। तो कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा -25, मतलब 25% इज लेस देन ए। ठीक है, ए एज परसेंट ऑफ बी। तो दिस विल बी, दिस इज द आंसर। 64 165, this we will get 125%। बी एज परसेंट ऑफ ए, बी एज परसेंट ऑफ ए के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, बी ए से 25% कम है, मतलब बी ने कवर पूरा नहीं कर पाया ए को और 25% छोड़ दिया, तो 75% कवर कर लिया, तो बी एज ए परसेंट ऑफ ए इज 75%। और यहाँ से ये आंसर भी निकाला जा सकता था आराम से। आप 100, इसमें 100 ऐड कर देंगे कि प्लस है, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग वाला है दैट इज योर होमवर्क, प्लीज ट्राई इट आउट। सिमिलर ही है, कुछ नथिंग न्यू, बट डू ट्राई इट आउट। ठीक है। अच्छा, एंड नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस फ्रॉम दिस गोइंग फॉरवर्ड वी विल फ्रीक्वेंटली यूज दिस। तो आपको एक टेबल बनाना होगा, उसमें आप ये लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे डेसिमल। ठीक है, एक आप लिखेंगे फ्रैक्शन, और ये आप हो जाएगा डेसिमल, फ्रैक्शन और परसेंटेज। ठीक है, अब ये कैसे करना है? सपोज आपके पास में एक फ्रैक्शन है 1/1, तो डेसिमल में आप इसको लिख सकते हैं 1.0, और परसेंटेज में आप लिखेंगे 1/1 इंटू 100, तो बेसिकली 100%। ठीक है, अब ऐसे आ जाता है आपका 1/2। 1/2 इज 0.5।
और परसेंटेज में आ जाएगा 50%। वैसे ही आपके पास में आता है 1/3, विच कम्स आउट टू बी 33.33%। एंड इस तरह से आई वॉन्ट यू टू मेक दिस टेबल टिल 12, मतलब ऐसे करते 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 आप 12 तक जाएंगे, मतलब 1/12 तक का पता करेंगे कि क्या होता है। वो लिखेगा बिकॉज दिस विल वेरी फ्रीक्वेंटली कम इन एनी ऑफ योर गोइंग फॉरवर्ड चैप्टर्स। तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है एंड इट सेव्स यू लॉट ऑफ टाइम। यू कैन थिंक वेरी फास्ट एंड इमेजिन द सिनेरियोज वेरी वेल। आपको ये आपकी अगर इस पर अच्छी पकड़ हो गई तो ठीक है। तो प्लीज डू दैट। नेक्स्ट क्लास में आप जब भी आए तो ये प्लीज बना के आइएगा एटलीस्ट। यू डोंट हैव टू यूज योर एनी कैलकुलेटर, आप नॉर्मल भी कर सकते हैं इसके बगैर भी, ठीक है। तो प्लीज डू दैट। एंड जो एक लास्ट रो रह गई थी, प्लीज कंप्लीट दैट होमवर्क ऑल्सो, ठीक है। चलिए, इन दिस सेशन विल रैप इट अप हियर ओनली एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।